Hello everyone. Thank you for watching Success Home Tutor. Kindly like, share and subscribe the channel. I am Ganesh Gulabzalti. Today we are going to discuss about the real number exercise 1.1. You will find it at page number 7 of 10th standard NCERT textbook. The question 1 is that Euclid's division algorithm to find the HCF. HCF is a highest common factor. Right? The question 1 is 135 and 225. These are the two numbers. Second 196, 38,220. Third one is 867 and 255. So difficulty level of this question is very easy. And what is given? Given is two different numbers like 135 and 225, 196 and 38,220. It's 67 and 255. What is unknown? We need to find out the HCF of given numbers. So here the reasoning part is nothing but few logic, we can say the idea behind the question. So with the help of Euclid's division lemma, we need to find out the HCF of the two given positive integer. We need a positive integer for this. So how to obtain? So there is a step to obtain positive integer. Step 1, applied Euclid's division lemma. A is equals to B into Q plus R. Here is a correction. Kindly correct this. The formula is A is equals to B into Q plus R. So instead of this P, there will be Q. So what is Q? Q is nothing but a quotient. What is R? Nothing but a remainder. So in the step 2, we need to take out division to the level where we will get R is equals to 0. And if R is not equals to 0, we need to continue with the step 3. That is what? Again, we need to apply Euclid's division lemma. So solution for the question 1. We need to find out the larger number or the greater number. 225 is a greater number than 135. So our A is 225 and our B is 135. So here we have A is equals to B into Q plus R. If we have divided 225 by 135, we will find the quotient as 1 and remainder as 90. So here I have written in this format: A is equals to B into quotient, that is 1, plus R, that is remainder 90. So in this step I have not get my R equals to 0, so I will continue with the Euclid's division lemma. So in the second step, my now 135 is the number where I will divide that number by 90. With my remainder is 90, hence I will divide that 135 by 90. Again, by dividing 90, I will get quotient as 1, remainder as a 45. Here also I have not obtained R equals to 0. I will continue with the division. So now I will divide 90 by 45 because 45 is my remainder. So just know the fact that your remainder is nothing but your new B. Okay, so I will divide 90 by 45. So when I divide 90 by 45, I will get quotient as a 2, remainder as a 0. So 90 is equals to 45 into 2 plus 0. This is what my new equation for Euclid's division lemma. So here I have obtained R equals to 0 in this step. Now since we have obtained the R equals to 0, now here is a step 3. So in that, where I have got R equals to 0, my B will be my HCF. So here, what is the value of B? The value of B is 45. Since the remainder is 0, the divisor 45 is my HCF. Okay. Question number 2, 196 and 3, 38,220. Here 38,220 is greater than 196. So my A is 38,220 and my B is 196. I will divide 38,220 by 196. So here
I will obtain that. My quotient is 195, my remainder is 0. So here r equals to 0. यहाँ पे I have ended my question या फिर I have got the answer. So my HCF is what? 196, right? The HCF of 38220 and 196 is 196, my HCF. Here question is ended. Now we'll move for the third question. 867 and 225. 867 is greater, 225 is smaller. So my A is 867, my B is 225. So I have divided 867 by 225. What I have now? My Q is now 3 and my R is now 102. But still I have not obtained R equals to 0. I'll continue with the Euclid's division lemma. So in this I will divide 225 by 102. I have obtained quotient as a 2, remainder as a 51. Here also I have not obtained remainder as a 0. I'll continue with this step 3. I will divide 102 by 51. 51 is my remainder, hence I have divided by 51. So I will obtain now 2. Here my quotient is 2 and remainder is 0. So as I have obtained remainder 0, I have find out the HCF. So that B is nothing but my HCF. That is what my 51. B of last step, not of the first step. Don't get misunderstood between the value of B. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है एवरी स्टेप जब आप अप्लाई करते हो आपका बी बदल जाता है, आपका ए बदल जाता है. ठीक है. सो हियर माय HCF इज 51 फॉर 867 and 225. We have also covered this topic, question 1 of exercise 1.1 in the last previous slide. So question 2 we have not covered onwards. Question 1 onwards हमने cover नहीं किया था. That's what we are going to cover in today's slide. So what is question 2? Show that any positive odd integer is nothing but it should be integer. So integer may be positive or a negative. When it calls as odd, when 1, 3, 5, 7, these are the odd numbers. So that any positive integer is of the form 6 times q plus 1 or 6 times q plus 3 or 6 times q plus 5, where q is some integer. Some integer means it may be odd or even integer. So difficulty level is tough. What is given? Some integer, we have known about some integer, that is q. And what is to prove? That any positive odd integer is of the form 6 times q. Just imagine the value of q is nothing but 1. Some integer, right? So I have decided 1. So what is 6 times q? Matlab 6 into 1 plus 1, that is what 7. That's what my odd number. 6 into q, that is 1 plus 3, 6 plus 3, 9, odd integer. 6 into q, that is 6 plus 5, that is 11. So in all these three, अगर मैं q का वैल्यू 1 डाल दूँ तो 6 इंटू क्यू करूँ तो 6 होता है. 6 प्लस 1 दैट इज 7. यहाँ पे भी 6 प्लस 3 दैट इज 11. तीनों केसेस में ये आ गया ऑड. चलो मैं 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 1 13. सेकेंड केस में 6 इंटू क्यू दैट इज 6 इंटू 2 प्लस 3 आया 15 ऑड है. देन थर्ड केस में 6 इंटू क्यू प्लस 5, क्यू का वैल्यू 2 है तो 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 5 17 ऑड है अगेन. सो दिस इज व्हाट. ये तो मुझे तो समझ में तो आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि ये तो भाई ऑड इंटीजर ही होने वाला है. ठीक है, बट वी नीड टू प्रूव दैट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज रीजनिंग. हाउ टू सॉल्व दैट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट थिंक अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. हमें सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जो है उसका इक्वेशन वो ध्यान में रखना चाहिए. ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर. दैट इज व्हाट माई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर वो इक्वेशन. सपोज देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने डिस्कस किया था 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. तो वहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं ए, राइट, एंड इट इज ऑफ द फॉर्म 6 टाइम्स क्यू प्लस आर. तो यहाँ पे 6 मतलब क्या हुआ आपका बी हुआ ना.
अगर आप यूक्लिड्स के इक्वेशन को कंपेयर करो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर मेरे पास a है तो a इज इक्वल टू व्हाट b इंटू क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ये इक्वेशन वहाँ पे वो कंपेयर करेंगे। वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, तो q क्या होता है, q इज नथिंग बट, हमने देखा है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, तो q इज व्हाट क्वोशंट। अगर मैं डिवाइड करता हूँ a को b से तो q मिलता है मुझे क्वोशंट और r होता है मेरा रिमाइंडर, तो q इज क्या है तो सम इंटीजर ही होता है ना वो। सो दिस मीन्स दैट तो r का वैल्यू जो होगा इट शुड बी बिटवीन 0 to 6। वाई 0 to 6? क्योंकि r हमारा कभी भी b से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है हमें 6 टाइम q प्लस आर, तो यहाँ पे r हमारा कभी b से बड़ा नहीं होगा। दैट इज व्हाट हमारा b का वैल्यू है 6। a का वैल्यू तो हमने a माना है ना, a का वैल्यू पता नहीं है हमें, तो वही हमें जो है नंबर क्या है, तो a इज इक्वल टू व्हाट b इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फार्मूला है। तो वहाँ से हमने क्या किया है, वो वैल्यू ऑफ r को हमें पता चलता है कि वो 6 से बड़ी नहीं होगी, तो दैट इज़ व्हाट यहाँ पे लिखा है 0 से 6 के बीच में होगा वो r का वैल्यू। सो दैट इज r इक्वल्स टू 0, या फिर r इक्वल्स टू 1 होगा, या फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा। ठीक है, तो 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो स्मॉलर देन 6 होना चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। तभी तो हमने 1 से 0 से 5 लिया, हमने 6 से छोटे है ना। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पॉसिबल वैल्यूज फॉर a कैन बी 6 टाइम q। अगर मैं एक जैसे कि मैं b की वैल्यू या फिर मैं r की वैल्यू चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे r के वैल्यूज़ दिए ना, हमें 5 वैल्यूज़ डालने हमें r के 0 1 2 3 4 5, और सबसे पहली वैल्यू क्या है 0। तो जो मेरे पास इक्वेशन था व्हाट इज़ दैट 6 टाइम q प्लस 1 वाला जो प्रीवियस ये है ना 6 टाइम q प्लस r, राइट, यहाँ पे ये इक्वेशन है 6 टाइम q प्लस r। तो इसमें r की वैल्यू 0 डाल दूँ मैंने, तो क्या होगा r 0 होगा, 6q बचेगा सिर्फ। वेट, r का वैल्यू 0 डाल दिया तो मैंने 6q ही बचेगा खाली, r का वैल्यू 1 डाल दिया तो 6q प्लस 1 बचेगा, 2 डाल दिया तो प्लस 2 बचेगा, 3 डाल दिया तो 6q प्लस 3 बचेगा, 4 डाल दिया तो 6q प्लस 4 बचेगा। तो यह होता है, ये हमारा रीजनिंग है। ये बात आपको अगर समझ में आती है, नहीं है तो आप एक बार फिर से वीडियो मेरा चेक कर लीजिए, यू विल फाइंड द आंसर, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। फिर भी मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन पे उसके। सो यहाँ पे करना क्या है, आपको पकड़ना है ए, एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझना है ए को। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, वो तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू 6 टाइम क्यू प्लस आर, ये हमने पहले डिस्कस किया है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा फार्मूला ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई 6। जस्ट फॉर, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्यू क्या है, ए तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, क्यू की वैल्यू के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। सो आर का वैल्यू हमने देखा है पहले रीजनिंग में, आर का वैल्यू तो ये बिटवीन 0 से 6 होगा, वो बी से बड़ा नहीं होता है ना आर का वैल्यू, इसलिए हमने उसको 0 से 6 तक ही लिया बी को। तो 0 से 6 तक मतलब क्या आएगा, 0 1 2 3 4 और 5 आ गए, 6 तो नहीं आएगा ना, 6 तो इक्वल होगा, फिर हमें छोटा चाहिए 6 से, स्मॉलर देन 6। सो देयरफॉर हमारा ए क्या बनेगा, भी ये वाला जो ए है ना यहाँ पे आएगा, तो हमारा ए बनेगा, पहले देखो आर की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी हुई है, यहाँ पे आर की वैल्यू है पहले मैं 0, तो इस वाले इक्वेशन में जब मैं आर की 0 डाल दूँ तो ए इज इक्वल टू 6q मुझे सीधा सीधा मिलना है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q। दूसरे केस में जब मैं r की वैल्यू 1 डालूँ तो सीधा सीधा मिलेगा 6q प्लस 1 यहाँ पे। तीसरे केस में जब 2 डालूंगा तो सीधा मिलेगा 6q प्लस 2, वैसे ही 6q प्लस 3 आ गई मुझे a की अलग अलग वैल्यूज। जब मैं r की वैल्यू बदलूंगा a के वैल्यू मुझे ऐसे मिलेंगे। तो नाउ जो अपन का सबसे 6q प्लस 1, तो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है एक्चुअल में, मुझे उसे इस तरह से स्प्लिट करना है कि मुझे एक मल्टी फैक्टर मिलना है, लेकिन फैक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं वो ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो k इज क्या है, k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पहले वाले में देखो 6q प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ये तो हो गया। दूसरे वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं 6q प्लस 1 की। 6q प्लस 1 को 6 को उसने लिखा है 2 टाइम्स 3q प्लस 1,
तो 2 टाइम्स 3 क्यों लिखा है कि वो स्प्लिटिंग के लिए, फिर आगे आपको एक कॉमन फैक्टर निकालना है, उसके लिए दिया हुआ है वो कहने का आपको प्रूव करना है, इसलिए वो एडजस्टमेंट होता है। ये जो कंसेप्ट है आपको प्रैक्टिस से आएगी, या फिर दिस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 3 प्लस 1, नेक्स्ट वाले में भी सेम है। 6 प्लस 3 था, पहले तो 3 को स्प्लिट किया हमने 2 प्लस 1 में, तो 6 प्लस 1 तो हमें पहले वाले इक्वेशन में भी था, 6 प्लस 1 तो था ना हमारे पास पहले में भी, और उस 6 को हमने स्प्लिट किया था 2 इंटू 3 में। यहाँ पे भी 6 को हमने क्या किया, 2 टाइम्स 3 प्लस 1 करा, और अभी ये जो 2 थी इनमें से सॉरी ये अभी जो 2 थी यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स 3 था। वैसे मुझे चाहिए सिर्फ 3 प्लस 1, एक कॉमन फैक्टर चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे मैंने 2 को 3 प्लस 1 से कॉमन किया, प्लस 1 लिखा। ऊपर वाले को मैंने क्या लिखा है, 2 प्लस 2k प्लस 1, k इज नथिंग बट व्हाट, k इज मेरा 2 टाइम्स 3, ये मेरा k 2k का वैल्यू है। या फिर k का वैल्यू क्या हुआ, फिर इंडिविजुअली k का वैल्यू हुआ 3q। यहाँ पे देखो ये कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सीधा यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो k1 का वैल्यू मुझे मिला है 3 टाइम्स q, तो यहाँ पे भी जो मैंने स्प्लिट किया 6q को, और 2 को मैंने स्प्लिट नहीं किया है, क्या कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर क्या बचा, 6q में से 3q बचा, प्लस वाला सिंबल, और 2 में से बचा 1, ठीक है, और आगे वाला प्लस 1। हाँ, तो यहाँ पे ये जो 3q प्लस 1 है, तो उसमें 3q को मैं क्या करने वाला हूँ, आई रिप्लेस द 3q बाय सिंपली ऊपर वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन देखो वही है 3q प्लस 1 का, 2 टाइम्स 3q प्लस 1, so it will be like 2k plus 2 times k1 plus 1, so whereas k1 is a positive integer. Then next वाला इक्वेशन सिमिलरली, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में जब मैंने 6q को रखा है, 4 को मैं, ये जो 4 है मैं इसको स्प्लिट करूँगा 2 प्लस 2 में स्प्लिट करने वाला हूँ, या फिर 4 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, और अंदर क्या बचा, 6q में से 3q बचा, और 4 में से 2 बचा अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3q प्लस 2 प्लस 1, सो k इज वॉट योर पॉजिटिव इंटीजर। तो क्लियरली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑफ द फॉर्म 2k प्लस 1, मतलब सभी के जो फॉर्म है वो 2k प्लस 1 के फॉर्म में आ रही है, सभी के सभी, राइट। जैसे इक्वेशन 1 में देखो हमने 2 टाइम्स 3q प्लस 1 को हमने 2k प्लस 1 करा था, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम जब हमने 3q प्लस 1 यहाँ पे ले लिया कॉमन में, व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड विद 2, तो इसको हमने 2k प्लस 1, मतलब समथिंग प्लस 1, समथिंग प्लस 1, तो जो ये जो पहला पार्ट है इसको हमने पूरा के पूरा 2k कंसिडर कर लिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट, मतलब 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, सो दिस इज व्हाट आने वाला है कंटिन्यूसली। अगर मैं वहाँ पे 7 ले लेता, 6q प्लस 7, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में 2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट 3q प्लस 3 प्लस बाहर में आएगा 1, सो मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में सिर्फ क्या बचा अभी, यहाँ पे 3q प्लस 3 होता नेक्स्ट स्टेप में, ये वाली अगर इससे मैं आगे स्टेप करता तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में 3q मतलब 3q प्लस 3 होता, जो कि मैं उसको भी एक कांस्टेंट टर्म पकड़ लेता या फिर मान लेता, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कांस्टेंट टर्म। के ही क्यों लेते हैं हम, कांस्टेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है बट वो चेंज नहीं होगी कभी, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ से फिर पता चला कि के क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, बिकॉज उसके स्टार्ट एंड में प्लस 1 हुआ है ना। अगर ये 6q इवन नंबर भी है उसमें प्लस 1 करूँ तो ऑड नंबर हो जाता है, ठीक है। 6q प्लस 3 करूँ तो मैं फिर से वो मतलब q का वैल्यू समझ लो आप 1 है 7, चलो 6 q की वैल्यू अभी 2 पकड़ लो आप,
6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 1 किया तो मैं 13 हो गया। मतलब k के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है, हेंस दिस एक्सप्रेशन आर ऑड नंबर एंड देयरफॉर odd integer can be expressed in the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, 6 cube plus 7, 6 cube plus 9, 6 cube plus 11 so on। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 आर्मी कंटी, एक्चुअली इट इज लेंदी सो हम फास्ट में कंक्लूड करेंगे इसको। एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मैच बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। तो समझ लीजिए ये HCF निकालना है दो नंबर्स के बीच में 616 एंड 32। सिंपली आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा कर लेना है यहाँ पे। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम, जैसे कि पाड़ा होता है, देखो होता है ना 2 का, आप सीधा टेबल देख लो 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इंटू 3 मतलब 6, या सीधा ये पाड़ा की बात कर रहे हैं वैसे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी अरेंज। ओके, तो 616 मेंबर्स को हमें क्या करना है कि एवरी बैंड में क्या 32 मेंबर हो गए। 616 मेंबर्स को हमें बैंड में डिवाइड करना है, हर बैंड में 32 मेंबर हो गए, सिंपल डिवीजन है। लुक एट दिस, तो HCF ऑफ 616 एंड 32, तो सीधा मैं 616 को 32 से डिवाइड करूँ, यहाँ पे यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन 1 में, आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लगा लिया मैंने यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब A को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा B से, A इज मेरा 616, A इज ग्रेटर दैन, तो ये बड़ा होता है ना, तो बड़ी नंबर है 616, छोटी नंबर है 32। 616 को 32 से डिवाइड करूँ मुझे 19 मिलेगा क्वेश्चन पे, और रिमाइंडर में मुझे 8 मिलेगा। सो दैट इज व्हाट 8 रिमाइंडर मिला, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं। क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ? क्योंकि मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप 2 किया, मैंने डिवाइड करा 32 को 8 से, मेरे रिमाइंडर 8 था, मैंने 8 से डिवाइड करा ये 32 वाले को नंबर को। तो 32 बाई 8 मल्टीप्लीकेशन में, तो क्वेश्चन मिला 4, रिमाइंडर मेरा 0, क्वेश्चन 4 मतलब क्वेश्चन मिला 4, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो क्वेश्चन सॉल्व। जहाँ पे जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 था वहाँ पे मुझे B वाली जो वैल्यू वो ढूंढनी पड़ती है, या फिर जो डिवाइजर होता है वो ढूंढना पड़ता है। तो डिवाइजर मेरा था 8, तो 8 इज माई व्हाट HCF यहाँ पे। तो कितने मैच या फिर कितने कॉलम बनेंगे? 8 कॉलम बनेंगे। देयर कैन बी 8 कॉलम्स ईच। सो नेक्स्ट, ये मीडियम लेवल का है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इंटीजर m के लिए यह है, आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार आंसर शीट आंसर देख लो, ठीक है। अगर इन केस इफ़ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, कुछ डाउट है आप मुझे इस पर क्वेश्चन कीजिए, आपके इंटरेस्ट अगर आते हैं तो आई विल कंटिन्यू विथ अदर 1.2 एंड आता हूँ, इसमें शायद 1.5 में, हाँ सॉरी 1.1 में 5 वाला क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड दोस्त, अगर कोई टीचर है जो देख रहे हैं, तो अगर आप एज एन एजुकेटर ज्वाइन होना चाहते हैं विद सक्सेस होम ट्यूटर, तो आप दिए हुए नंबर, ये वाला जो नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आप एजुकेटर अगर होते हैं तो आपके बेनिफिट्स क्या है? आप सक्सेस होम ट्यूटर तो पार्ट बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अचीव कर सकते हो, एक जो है ना ऑनलाइन रिवॉल्यूशन, आप उसका एक पार्ट बन सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, और आई विल मेक श्योर इफ़ आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है हमारे एंड से आपको अवेलेबल किए जाते हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, आपको बाकी की डिटेल मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सक्सेस होम ट्यूटर। हैव अ गुड टाइम।